আজকাল মিডিয়ার সামনে একজন কেনো আঙুলের বয়সী মেয়ে গলা ফাটিয়ে চেল্লায়, নিজেকে মহান সনাতনী হিসেবে দাবি করে এবং তার সেই চেল্লানো, তার সেই কথাগুলো হাজারো মানুষ ঘিরে শুনতে থাকে। ঠিক তার টাইপেরই মানুষেরা, মুখ থেকে কথা তো নয় যেন বিষ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধুরা, আজকে কোন টপিক নিয়ে আপনারা সামনে উপস্থিত হয়েছি আপনারা থাম্বনেল দেখে বুঝে নিয়েছেন, আপনারা শিক্ষিত সমাজের লোক। আজকের টপিকটা হইল একজন মহিলা জাকির নায়কের অকাত এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে খুব বেশি ভাইরাল হয়েছে। এই মেয়েটা জাকির নায়ক, ডক্টর জাকির নায়ক, তিনি ইসলামিক প্রচারক, কোরআন বিশ্লেষক এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে উনি বিশ্লেষণ করেন। ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অকাত নিয়ে কথা বলেছে। এর প্রাপ্য জবাব দিয়েছেন কলকাতার একজন হিন্দু মহিলা সোমিয়া। ওনার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, উনি ওনার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করেছেন। আমরা গতকালকে আজকে আমরা দেখতে পারলাম উনি ওনাকে, ওই মহিলাকে পুরা জবাব দিয়েছেন ভিডিওর মাধ্যমে। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং ভালো লাগলে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটাই দেখছেন আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পেজটাই যারা দেখবেন আমার পেজটা ফলো করবেন। ধন্যবাদ। আপনারা ভিডিওটা ফলো। এখানে এই ভদ্রমহিলা কি বলেছে এবং জাকির নায়কের যে ভিডিও, ওই ভিডিও তো এখানে লিঙ্কে দেওয়া আছে। আর ওই ভদ্রমহিলা কি বলেছে আমরা পুরো ভিডিওটা দেখে নিই। ভিডিওটা একটু লম্বা হবে, আপনারা দেখে যান। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম আমার প্রাণ প্রিয় ভাই বোনেরা, গুরুজনেরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই ঠিক আছেন, ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আর আপনাদের দোয়ায় আপনাদের সৌমিয়াদিও একদম ঠিক আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজকাল মিডিয়ার সামনে একজন কেনো আঙুলের বয়সী মেয়ে গলা ফাটিয়ে চেল্লায়, নিজেকে মহান সনাতনী হিসেবে দাবি করে এবং তার সেই চেল্লানো, তার সেই কথাগুলো হাজারো মানুষ ঘিরে শুনতে থাকে। ঠিক তার টাইপেরই মানুষেরা, মুখ থেকে কথা তো নয় যেন বিষ ছোটে। তো চলুন ভিডিওটি আমি আপনাদের আগে শোনাই। আর তার আগে বলে দিই, একটা লাইক দিয়ে অবশ্যই ভিডিওটা দেখা শুরু করুন। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন, তাকে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো আপনাদের ফোন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায়। আর আজকের ভিডিওটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকের ওপর ভিডিও, কেন কি মিথ্যেটা মানুষের সামনে পৌঁছাতে বেশিক্ষণ লাগে না। আর আমার উদ্দেশ্য হলো আমার ভিডিওর দ্বারা সত্যিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরা, আর সত্যিটাই আমি তুলে ধরতে চাই। সুতরাং ফার্স্ট টু লাস্ট ভিডিওটি দেখার আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর ভিডিওটিকে অনেক 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 শেয়ার করবেন, যাতে সত্যিটা মানুষের কাছে পৌঁছায়। এই সমস্ত ভুলভ্রান্তি, মিথ্যে কথাগুলোর পেছনে পড়ে মানুষ যেন না ছোটে। তাহলে চলুন মেয়েটি কি বলছে ভিডিওটি আগে মন দিয়ে শুনুন। ये जाकिर नायक, मैं आपको बता रही हूँ इसकी क्या औकात है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है इस जाकिर नायक की। ये बड़ी स्टेज पे चढ़ के एक हिंदू जिससे अपने धर्म को, अपना धर्म नहीं पसंद आ रहा था, एक कोई हिंदू था जिसे अपना धर्म पसंद नहीं आ रहा था, वो कह रहा था कि मुझे इस्लाम धर्म में आना है, मतलब मुसलमान, मुझे खतना करवाना है। ठीक है, उस गवार ने अभी अपना कोई ग्रंथ तक नहीं पढ़ा, उसकी औकात नहीं है कि कोई ग्रंथ उठा के पढ़े। वो जाकिर नायक उससे पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारी श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? वो कहता है 16,000। ठीक है, तो तुम्हारी 16,000 थी तो हम 4 भी नहीं रख सकते? और वो लोग हंसने लगते हैं ये बोल के। इस जाकिर नायक की औकात है कि हमारे श्री कृष्ण पे सवाल करें? इसे पता भी है कि श्री कृष्ण ने 16,000 श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां कैसे हुई? আপনারা শুনলেন মেয়েটি কি বললো। মেয়েটি বলতে চাইলো যে একজন সনাতনী ধর্মীয় মানুষ, যার কিনা নিজের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, সে মুসলিম হতে চেয়েছিল, সেই জন্য ডক্টর জাকির নায়কের সভায় গিয়েছিল এবং সেখানে তিনি বলেছিল যে শ্রীকৃষ্ণের 16,000 পত্নিয়া, মানে 16,000 বউ আছে, সেটি বলেছিল। এবং ডক্টর জাকির নায়ক সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছে যে তোমাদের ভগবান 16,000 বউ রাখতে পারে, তো আমরা কি 4টেও রাখতে পারবো না? যাই হোক, মেয়েটি এই কথাগুলো বললো, আপনারা শুনলেন। এবার চলুন আসল ভিডিওটি আমি আপনাদের দেখাই যে আসলে সেখানে কি কি কথা হয়েছিল, সেখানে ডক্টর জাকির নায়ক কি বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথাগুলো এবং অরিজিনাল ভিডিওটা আমি আজকে আপনাদের দেখাবো। তাহলে আপনারা বুঝেই যাবেন যে এই মেয়েটি যে কথাগুলো বলছে তার কথাগুলোর মধ্যে, ভিডিওটির মধ্যে কতটা সত্যতা আছে। চলুন মন দিয়ে এবার ভিডিওটি দেখুন। नेवर जाकिर नायक जी को नमस्कार।
मैं लालचंद आर्य नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले माननीय रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे सत्तार प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा। उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदु। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते हैं मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, और बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते या शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरी तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी। चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की। वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर की, मेरी तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कशिज जनिता न च दीपा, ये संस्कृत कोटेशन है। इसके मानी होती है कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से
जो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असम्मुति की पूजा करते हैं। असम्मुति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, 4 वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1, बुक नंबर 1, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46 एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्हें पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी, पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अब दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। কি বন্ধুরা, ভিডিওটি আপনারা তো দেখলেন, আর ওই মেয়েটির বলা কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের মাথার মধ্যে ঘুরছিল। তো ভিডিওটা দেখার পর আপনাদের কি মনে হলো, মেয়েটার বলা কথাগুলোর সাথে ভিডিওটার কতটা মিল আছে? মেয়েটি বলেছিল যে যে মানুষটা হিন্দু ধর্মের বিষয়ে কিছু জানে না, সে মুসলমান হতেই ওখানে গিয়েছিল, তো সে এই ধরনের কথাগুলো বলেছিল। তাহলে আপনারা ভিডিওতে দেখতেই পেলেন যে মানুষটি যে ডক্টর জাকির নায়েককে প্রশ্ন করলো তিনি কিসের ভিত্তিতে প্রশ্নটা করলেন এবং ডক্টর জাকির নায়েক উত্তরে কি কি বললেন। মেয়েটির কথা সম্পূর্ণ সত্যি নয়, কথার মধ্যে আগুন জ্বলছে, কথার মধ্যে মিথ্যে উঠছে, চিল্লে চিল্লে মানুষের কাছে মিথ্যে ছড়াচ্ছে, বিষ ছড়াচ্ছে, হিংসা ছড়াচ্ছে, আর পেছন থেকে মানুষেরা কি করছে, হাওয়া দিচ্ছে। বুঝতে পারছেন? এই দুনিয়া, এই সমাজে আমরা বাস করি। সত্যিটাকে মেনে নিতে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কষ্ট হলেও সত্যিটা কখনোই মিথ্যে হয়ে যায় না, সত্যিটা কিন্তু সত্যিই থাকে। প্লাস সেখানে শঙ্করাচার্যা, ওখানে রবিশঙ্কর শাস্ত্রীজি সবাই বসে রয়েছেন। তারা তো বিজ্ঞ মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, এনারা বেদ, মহাভারত, রামায়ণ সমস্ত কিছু গুলে খেয়ে বসে আছেন। সুতরাং সেখানে তারা বসে সেসব কথার মধ্যে ভুল ধরতে পারছেন না, আর এক রত্তি কেনো আঙুলের মেয়ে মিডিয়ার সামনে চিল্লে চিল্লে নানান রকম মন্তব্য করে যাচ্ছেন, আর সেগুলো মানুষ মন দিয়ে শুনছে। তাহলে বুঝতে পারছেন আপনারা, ভালো আর সত্যির সাথে অনেক কম মানুষ আছে। কিন্তু আমি চাই আমার ভিডিওটাকে আপনারা অনেক অনেক শেয়ার করুন, যাতে যারা সত্যিটা জানতে চায়, যারা সত্যিটা মেনে নিতে পারে, তাদের কাছে আমার ভিডিওটা পৌঁছে যাক। ভালো থাকবেন, সেফ থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী একটা ভিডিওতে এইরকম সত্যি টপিকের ওপরে, আসল বিষয়ের ওপরে ভিডিও আবার নিয়ে আসবে আপনাদের সৌমিয়াদি। ততক্ষণের জন্য আমাকে দিন বিদায়। খুদা হাফেজ।